Good morning, students. I am Rita Sinha. Today I am going to teach the second chapter of English Reader of class 4. The name of this chapter is Elephant Feast. So welcome to join my English class. Children, the meaning of feast is Dawat. Elephant ka Dawat. Firstly, I explain the story in English briefly. Please listen carefully. Once the children named Seher and Sadat asked their grandma to tell them the forest stories in relaxed time. Then grandma told that their grandpa was a forest officer. He was sent to Bangdubi near Siliguri to check the elephant menace. He found that wild elephants were wandering into rice field and eating up the crops at night. A large part of old forest area had been cut down. Elephants needed a lot of food. They became hungrier and they chased a man down the road and broke the wall of house of food. Further, there was an old granary near the village. The herd of elephants reached there. Two men hid themselves in the leaves of banyan tree. The elephants hit the wall with their tusks, one by one. At last they made a big hole in the granary, and then they entered into the granary one by one. One of the elephants guarded at distance. When the elephant feasted themselves fully, the guard elephants trumpeted loudly and the herd of elephants rushed into the forest. चिल्ड्रन इस कहानी में एलिफेंट किस तरह से अपना दावत करता है ये समझाया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश। आप लोग इसको केयरफुल होकर लिसन कीजिए। द चिल्ड्रन snuggled up to grandma. Snuggle means children relaxed time. जब आदमी काम से फ्री होकर थोड़ी देर आराम करता है उस टाइम को snuggled कहा जाता है। It was story time and grandma had many interesting stories to share. ग्रैंडमा को बहुत सारे दिलचस्प स्टोरियाँ आती थी जो दूसरे के साथ साझा करती थी। शेयर में साझा करना। Tell us one of your forest stories, grandma said सेहर। सेहर ने कहा कि दादी माँ मुझे एक जंगल की कहानी बतलाइए, कहिए। Yes, said सदत। सदत ने भी कहा हाँ। Tell us one about a tiger. टाइगर के बारे में बताइए। No, tell us one of your elephant stories. मुझे हाथी की कहानी के बारे में बतलाइए। Like the one about the newborn elephant calf that made you fall. Elephant calf means children, हाथी के बच्चे, newborn baby. Or the one about the wild elephant that rubbed its back against your house and you thought it was an earthquake. Earthquake means भूकंप. Were you very frightened, grandma? Oh, yes, I was. Well, I will tell you an elephant story which will show you how intelligent these animals are. They are also very organized. वो बहुत संगठित भी होते हैं। हाथी जो होते हैं बहुत संगठित होते हैं और बहुत बुद्धिमान होते हैं। And caring creature, और बहुत ही केयरिंग जीव होते हैं। Long ago, when your grandpa was a forest officer. बहुत दिनों की बात है जब तुम्हारे ग्रैंडफादर जो है सो फॉरेस्ट ऑफिसर थे। He was sent to Bangdubi. It is a forest outpost near Siliguri. वो बेंगदुबी भेजे गए थे जहाँ जो सिलीगुड़ी के नज़दीक छोटा खेमा है। At the foothill of the Himalayas, और हिमालयाज के फुटहिल के पास है।
दैट एरिया इज नोन एज द्वार्स। द्वार्स मीन्स चिल्ड्रन, माउंटेन के दरवाज़ा को, पहाड़ के दरवाज़ा को हम लोग द्वार्स कहते हैं, विच मीन्स द्वार्स ऑफ द माउंटेन्स। ही वॉज सेंट देयर टू चेक ऑन व्हाट द पीपुल लिविंग देयर कॉल्ड द एलिफेंट मीनेंस। मीनेंस मीन्स ट्रबल। ये उनको चेक करने के लिए कहा गया था कि आखिर वहाँ के पीपुल जो है क्यों प्रॉब्लम में हैं। वाइल्ड एलिफेंट्स वेयर वॉन्डरिंग इनटू राइस फील्ड एंड ईटिंग अप द क्रॉप्स एट नाइट। जितने भी जंगली हाथी थे वो दिन भर घूमते थे और रात में चावल के खेत को खा जाते थे। द नाइट गार्ड्स ट्राइड टू स्केयर ऑफ द हंग्रियर बीट्स। भूखे जानवर को नाइट गार्ड जो हैं सो डराते थे। बट द एलिफेंट्स वे आर नॉट सो ईजिली फ्राइटन, लेकिन वो आसानी से नहीं डरते थे। योर ग्रैंडपा वेंट आउट टू इंस्पेक्ट द प्लेस। तुम्हारे दादाजी को वहाँ के जगह को निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था। He found that a large part of the forest had been cut down. उन्होंने पाया वहाँ कि वहाँ के लार्ज पार्ट को काट दिया गया है। Only a very narrow part of the old forest area remained. सिर्फ पुराने जंगल में थोड़ी सी संकीर्ण छोटा सा भाग बचा हुआ था। And the elephants lived there. और वहाँ हाथी रहते थे। Elephants need large space to live in. हाथी को रहने के लिए बड़ी जगह चाहिए थी। And they also need a lot of food. और अधिक खाना चाहिए था। The people had taken these away. जिसे आदमी ने, पब्लिक पीपुल ने ले लिया था, छीन लिया था। How would you feel? तुम कैसा फील करोगे? If your home was taken away. अगर तुम्हारे घर को कोई ले ले and you didn't have enough to eat. और तुम्हारे खाने के लिए कुछ नहीं हो, अधिक नहीं हो। Very bad, of course, said सदत। सदत ने कहा यह तो बहुत बुरा होगा। Well, the wild elephant kept getting hungrier and hungrier. वहाँ के हाथी जो है सो भूखा रहते थे, भूखा रहने लगे। And they also became angry. और काफ़ी गुस्से में रहने लगे। A hungry animal is an angry animal. जो भूखा होता है वो गुस्सैल होता है। One day even chased a man down. एक दिन उसने एक आदमी का पीछा किया। The forest rode and broke the wall of a house in search of food for their little ones. वो आदमी का इसलिए पीछा किया और पीछा करते करते उसके घर तक पहुंचा। उसके दीवार को वो तोड़ दिया खाने की खोज में, भोजन की खोज में। Not far from the village. गांव से बहुत दूर एक गांव, शहर, ये गांव बहुत दूर नहीं था। There was an old granary. Granary means जहाँ अनाज संग्रह किया जाता है, अनाज को रखा जाता है। There was an old granary where the farmers stored their grains till they could sell it to the merchant. जिसको वो सौदागर के हाथ से बेचते थे। Early one morning, एक दिन सुबह, an elephant, clearly the leader of the herd, appeared at the granary. एक दिन एक हाथी जो उन लोगों का लीडर लग रहा था वो ग्रेनरी के पास पहुंच गया। After looking around for a while, it returned to its herd. और फिर वहाँ से रिटर्न हो गया। A little later, थोड़ी देर के बाद, two men who were on their way of the granary saw the herd move towards the granary in an almost military order. दो आदमी ने देखा कि जो है सो मिलिट्री ऑर्डर में बहुत सारे हाथी के झुंड चले आ रहे हैं ग्रेनरी के पास। The alarmed man speedily climbed a banyan tree. वो आदमी जल्दी से बनियान ट्री, बरगद के पेड़ पर चढ़ गया and hid themselves. और अपने आप को छुपा लिया among the leafy branches. पत्ते वाले शाखा में। They watched the elephant. उन्होंने हाथी को वॉच करना शुरू कर दिया। The walls of the granary were thick and strong. वो अनाज रखने वाले जगह जो
ग्रेनरी थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और उनकी दीवार काफ़ी मोटी थी. बट द एलिफेंट सीम टू हैव ए प्लान. वन एलिफेंट वेंट अराउंड इट. एक हाथी क्या घूम रहा था. इफ इंस्पेक्टिंग इट, वो जो है निरीक्षण कर रहा था. वन ऑफ द लार्जेस्ट एलिफेंट्स ऑफ द हर्ड देन took up a position at a corner of the granary and started hitting the wall with its tusk. और बहुत सारे हाथी के झुंड जो थे वो दीवार पर चोट मारना शुरू कर दिए. When it was tired, जब वो थक जाते थे, another took over, दूसरा मारना शुरू करते थे, and then another. इस तरह से वो लोग एक 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 करके उस दीवार पर टस्क से चोट मारते थे और इस तरह से उन्होंने एक होल कर लिया. एन ओपनिंग वाज क्रिएटेड एंड सून इट वाज मेड लार्जर एंड लार्जर. जल्दी एक बहुत बड़ा होल हो गया. व्हेन दे हैड मेड ए होल बिग एनफ फॉर एन एलिफेंट टू इंटर. अब इतना बड़ा होल हो गया जो उसमें हाथी आसानी से अंदर जा सकते थे. द हर्ड डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 or 4. हाथी जो है 3-4 ग्रुप में डिवाइड हो गए. सिंस ओनली ए फ्यू कुड फाइंड रूम इनसाइड, और कुछ अंदर जाते गए रूम के अंदर. देन वन बाय वन ईच ग्रुप इंटर्ड द ग्रेनरी टू फीस्ट ऑन द पैडी. इस तरह से एक एक करके सभी ग्रुप अंदर गए और धान का को खा गए. व्हेन one group had eaten all it could, its place was taken by another. जब एक ग्रुप खा के बाहर आता था तो दूसरा उसके अंदर जाता था. One of the elephants stood guard at a distance. एक हाथी दूर खड़ा होके ये गार्ड कर रहा था. After all the elephants had feasted to their fullest. जब सभी हाथी ने पूरी तरह से खा लिया. द गार्ड ट्रम्पेट. ट्रम्पेट मीन्स चिल्ड्रन हाथी की आवाज़ को चिघाड़ना. हाथी की आवाज़ को ट्रम्पेट कहते हैं. लाउडली, तो गार्ड जो है सो जोर से चिघाड़ा. एंड द हर्ड रश्ड ऑफ इनटू द फॉरेस्ट. और हाथी का झुंड जो है सो जंगल की ओर चल दिया. वाओ ग्रैंडमा सेड सेहर. सेहर ने कहा वाह दादी माँ. दैट जस्ट लाइक एन आर्मी रेड. ये तो जस्ट लाइक जो है सो आर्मी रेड की तरह था. यस सेड ग्रैंडमा. ग्रैंडमा ने कहा हाँ. एज आई टोल्ड यू बिफोर, मैंने पहले भी तुम्हें बताया. एलिफेंट आर वेरी इंटेलिजेंट क्रिएचर. एलिफेंट जो है सो बहुत बुद्धिमान जीव होते हैं. ऑल्सो रिमेंबर दैट दे आर वेरी केयरिंग. और ये भी याद रखो कि वो बहुत केयरिंग होते हैं, प्रोटेक्टिव भी होते हैं. एंड कंप्लीटली अनसेल्फिश एनिमल, और निस्वार्थ जानवर होते हैं. थैंक यू.